very good morning to my dear students. Today we are going to start with another topic, petroleum, from the chapter Coal and Petroleum. As you all know that petrol is used as a fuel in various vehicles like motorcycles, scooters and cars, and heavy motor vehicles they are using diesel. So let's discuss a topic, that is what is petroleum, how it is formed, where it is formed and how it is refined. So petrol and diesel, they are obtained from a natural resource that is called petroleum. Petrol और diesel कहाँ से मिलता है? From the petroleum. So we are going to start how this petroleum is formed. Petroleum, that is a dark oily liquid with an unpleasant smell. Because of its commercial use, because it is used for manufacturing so many substances like fibers, polythenes, man-made plastics, and so many uses are there. So because of this commercial importance, this petroleum is also known as black gold, and it is made up of from two words. Petra means rock and oleum means oil. So how it is formed? Let's discuss. Many organisms were living in the seas, and when these organisms died, their bodies got settled at the bottom of sea, and after so many years their bodies are going to be covered with the layers of sand and clay. Because of absence of air, high temperature, high pressure, these dead organisms are converting into petroleum and natural gas. Is it clear? Dead remains were buried at the bottom of the sea, and because of high temperature and pressure they are converting into the petrol. Is it clear? Petroleum formation. There are the sea plants, they are buried on the ocean's floor, and they are going to be covered with the sand and clay, and leading to the formation of a black gold. That black gold is known as petroleum, and there is also a natural gas formed there. Is this picture clear to you? The heat and pressure convert their dead bodies into petroleum and natural gas. So in this picture you are seeing that there is a oil wells or the gas wells. From these oil wells we are getting the petroleum, and from this gas wells, these regions are between the rocks. There are the imperious rocks and the reservoir rocks, and we are getting the petroleum and the natural gas from these wells. And the next very important topic from the chapter is refining of petroleum. But before discussing that topic, I want to ask you that why the layer of oil and gas is above the water. Why it is so? Why you are saying that layer containing oil and gas is above the water? Because ये जो ऑयल है, जो पेट्रोलियम ऑयल है, जो रॉक्स के बीच में आपको दिखाई दे रहा है, और जो गैसेस दिखाई दे रहा है, ये देयर इज़ अ नेचुरल गैस फॉर्म, एंड दिस इज़ lighter than the water, and they are not going to be mixed with it. So these layers are above the water, and these layers are between the rocks, and we are getting the oil or the gas by drilling. After drilling we are getting the oil and the gas from these wells. Refining of petroleum. As we all know that this petroleum is a oily liquid, और इस liquid के अंदर बहुत सारे constituents होते हैं. हम इस पेट्रोलियम को डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं. इसके अंदर के जो प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लाइक पेट्रोलियम गैस होता है, इसके अंदर पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, और पैराफिन वैक्स, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर. उन कंपोनेंट्स को अगर हमें सेपरेट करना है, उनको रिफाइन करना है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड रिफाइनिंग. और जहाँ ये प्रोसेस करी जाती है, कैरिड आउट, दैट प्लेस इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम रिफाइनरी.
हमारे यहाँ करनाल के आसपास कहाँ है रिफाइनरी? देयर इज़ इन पानीपत, देयर इज़ पानीपत ऑयल रिफाइनरी, जहाँ क्या किया जाता है, कंपोनेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पेट्रोलियम के, उनको सेपरेट किया जाता है. एंड हाउ इट इज़ सेपरेट, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. द डिपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम अकर्स विद द नेचुरल गैस. अभी मैंने आपको एक पिक्चर में दिखाया था ऑयल वेल्स में, जहाँ से इसको निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग. एंड रिफाइनिंग इज़ अ प्रोसेस जहाँ हम क्या करते हैं, इस पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं, उसके कंपोनेंट्स को, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करते हैं. एंड द प्रोसेस यूज फॉर दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इज इट क्लियर? What is refining? The separation of various compounds of crude oil. Crude oil का नाम, इसको हम दूसरा नाम क्या है, दिस अदर नेम इज़ पेट्रोलियम. अगर हम उसको सेपरेट करते हैं, और किस प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. क्रूड ऑयल प्रोड्यूस फ्रॉम एन ऑयल वेल, उसके अंदर बहुत सारे लिक्विड मिक्स होते हैं. एंड डिफरेंट टेम्परेचर इवेपोरेट. डू यू नो व्हाट इज़ इवेपोरेशन? अब हम क्या करेंगे, इस क्रूड ऑयल को हीट करेंगे at a very high temperature, and at a temperature of 400 degree Celsius, and it is fed into a bottom of the column. और उसको हीट करते जाएंगे, जिस जो कॉन्स्टिट्यूएंट का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे पहले बाहर आएगा, और बाद में उसको पहले उसके वेपर्स बनेंगे, क्योंकि इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म. जब हम उसको हीट करेंगे तो क्या बनेंगे, वेपर्स बनते हैं. वेपर्स, जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे पहले वेपर्स बन के ऊपर आ जाएगा, और जिसका टेम्परेचर उससे ज़्यादा होगा वो थोड़ा टाइम लेगा वेपर्स बनाने के लिए. उसके बाद उन वेपर्स को कंडेंस किया जाता है, और इसी तरह से जो पेट्रोलियम के अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको क्या किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट हम उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. जस्ट सी दिस पिक्चर. In this petroleum refining process you can easily see there is a crude oil, आपको दिख रहा है यहाँ पे रेड. This oil is heated in a furnace. उसको हाई टेम्परेचर पे जो हम पेट्रोलियम ऑयल निकालते हैं यहाँ रॉक्स के बीच में से, ऑयल वेल्स के में से, उस क्रूड ऑयल को क्या किया जाता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है. और बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, उसके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो धीरे धीरे करके क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, उनके वेपर्स बनते हैं, और बाद में उन वेपर्स को कंडेंस किया जाता है, और हमें डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट कंपोनेंट आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं. कंपोनेंट सबसे पहले ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, देयर इज़ ब्यूटेन एंड प्रोपेन, देयर इज़ दैट इज़ द LPG, देयर इज़ अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हम यूज़ करते हैं ना सिलेंडर्स घर में. At 150 degree Celsius there is a formation of petrol. At 200 degree Celsius we are having kerosene. ये सारे प्रोडक्ट किस में से निकल रहे हैं, किस में से सेपरेट आउट हो रहे हैं, जब हमने इस क्रूड ऑयल को क्या किया, हीटअप किया. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उस ऑयल के अंदर थे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. डीजल कितने टेम्परेचर पे सेपरेट होगा, उसके वेपर्स बनेंगे, और उस वेपर्स को हम कंडेंस करेंगे और हमें डीजल मिलेगा. 370 डिग्री सेल्सियस पे हमें फ्यूल ऑयल मिलता है, एंड 400 डिग्री सेल्सियस पे वी आर हैविंग द lubricating oil, paraffin wax, and there are the certain products which we are going to have at different temperature conditions. You can see this elaborated picture. There is a fractionating column. जब इस क्रूड ऑयल को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है. सबसे ऊपर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एट 220 डिग्री सेल्सियस देयर इज़ रिफाइनरी गैस. इट इज़ यूज एज अ फ्यूल, दैट इज इट इज़ यूज इन LPG सिलेंडर्स, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. एट 70 डिग्री सेल्सियस में हमें क्या मिलेगा, पेट्रोल, जिसको हम कार्स में यूज़ करते हैं. कैरोसिन कितने टेम्परेचर पे मिलेगा, डीजल कितने टेम्परेचर पे मिलेगा, कहाँ कहाँ इनको यूज़ किया जाता है, यू हैव टू लर्न दिस. लुब्रिकेटिंग ऑयल कहाँ यूज़ किया जाता है, फॉर कार्स एंड अदर मशीन्स. फ्यूल ऑयल यूज़ किया जाता है फॉर द शिप एंड फैक्ट्रीज़. और जो भी इसमें से रेजिड्यू होते हैं, लाइक ब्यूटामिन हमने कल भी डिस्कस किया था, उस ब्यूटामिन से जो इट इज़ यूज इन द फॉर्म of rod surfacing. Is it clear?
ये जो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं उनके आपको यूजेस भी लर्न करने हैं कि जैसे पेट्रोलियम गैस है उसको कहाँ यूज़ किया जाता है, गैसोलीन लाइक पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल ऑयल, हैवी ऑयल, फ्यूल ऑयल एंड रेजिड्यू, इन सब के यूजेस भी आपको लर्न करने हैं। एंड ये जो सारे इसके अंदर में से कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट हुए हैं, इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। These constituents are also known as fractions of the petroleum। और हमें कौन सी प्रोसेस से ये मिले हैं? These are the product which are getting from after the refining of petroleum। और ये कहाँ की जाती है रिफाइनरी? It is refining, this is carried out in a petroleum refinery। Is it clear? And the last topic for the discussion is natural gas। It is also a fossil fuel, and in our country natural gas has been found in Tripura, Rajasthan and other areas। Compressed natural gas, जब इस नेचुरल गैस को स्टोर किया जाता है अंडर हाई प्रेशर तो ये क्या हो जाती है? दिस इज CNG। आपने सुना हुआ है ना CNG, दिस इज compressed natural gas। And what are its advantages? It causes less pollution, it is used at homes and the factories for burning purpose। और इनको हम बहुत ही easily ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं with the help of pipes। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम इस नेचुरल गैस को CNG को यूज़ करते हैं? It is used in automobiles, it is used for the manufacturing of many chemicals, it is used for making the chemicals, fertilizers, and this is having lots of application, this natural gas।